বিগ ব্ৰেকিং লৈ আহিছোঁ কিয়নো এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰত এক প্ৰকাৰ ভূমিকম্প আহিছে। ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিধায়কে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আৰু যোগী আদিত্যনাথৰ সংগ ত্যাগ কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যোগী আদিত্যনাথৰ বিজেপিত এই মুহূৰ্তত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰত পদত্যাগৰ এই মুহূৰ্তত জোৱাৰ উঠিছে। কেবিনেট মন্ত্ৰী স্বামী প্ৰসাদ মৌৰ্যাৰ পিছত আন এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিছে। যোগী কেবিনেটৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে বন আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী দাৰা সিং চৌহানেও। ইয়াৰ উপৰিও 4গৰাকীকৈ বিধায়কেও এই পৰ্যন্ত পদত্যাগ কৰিছে। বিধায়ক ৰোশনাল বাৰ্মা, ব্ৰিজেশ প্ৰজাপতি, ভাগৱতী সাগৰ আৰু বিনয় সাক্ষই পদত্যাগ কৰিছে। মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পদত্যাগে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ চৰকাৰত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে অখিলেশ যাদৱে আদৰণি জনাইছে স্বামী প্ৰসাদ মৌৰ্যাক। দুমাহ পূৰ্বে যোগী আদিত্যনাথৰ বিৰুদ্ধে অমিত শ্বাহক অভিযোগ দিছিল মৌৰ্যাই, কিন্তু সেই অভিযোগ গ্ৰহণ কৰা নহল। যোগী আদিত্যনাথৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়ক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এয়া উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিত মুখ্য আঘাত হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। স্বামী প্ৰসাদ মৌৰ্যা এগৰাকী শক্তিশালী OBC নেতা। উত্তৰ প্ৰদেশত OBC ভোটৰ ওপৰতে ফলাফল বহু নিৰ্ভৰ কৰে। যোগী আদিত্যনাথে দলিত, কৃষক আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীক অৱজ্ঞা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। বিজেপি এৰি ডুবিব ধৰা নাৱত নুঠিবলৈ সতীৰ্থক আহ্বান জনাইছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্যাই। অহা 14 জানুৱাৰীত এইসকলে সমাজবাদী পাৰ্টিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে। অখিলেশ যাদৱৰ দলত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে। যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰত পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 2গৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে। তেওঁ হৈছে দাৰা সিং চৌহান, তেওঁ বন পৰ্যটন মন্ত্ৰী। ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰম মন্ত্ৰী স্বামী প্ৰসাদ মৌৰ্যাই পদত্যাগ কৰিছিল। কালি 4গৰাকী বিধায়কে পদত্যাগ কৰিছে আৰু এই তালিকা বহুত দীঘল হ'ব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দাৰা সিং চৌহানৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। এইখন তেওঁৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ। ৰাজ্যপালৰ হাতত ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিছে আৰু ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে পিছপৰা জাতি, দলিতসকল, কৃষক, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক এইসকলক গুৰুত্ব দিয়া নাই যোগী আদিত্যনাথে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুৰোধ কৰিছে আপোনালোকে ডুবিব ধৰা নাৱত নাযাব বিজেপি এৰি। আৰু ইপিনে কালি যিগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছিলে স্বামী প্ৰসাদ মৌৰ্যাই, তেওঁ এই মুহূৰ্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত কৈছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ এই পদত্যাগে ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিছে যোগী চৰকাৰক। সেই মন্তব্য আমি NDTVৰ সৌজন্যত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। भूचाल लाने के लिए केवल मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा ही काफी है। आगे भी और भी चर्चाएं हो जाएंगी, लेकिन आज जो आवश्यकता थी कुंभकर्णी नींद सोने वाली भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध मैंने अपने विरोधी के माध्यम से दर्ज कराया। पहले भी उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात समय समय पर रखता रहा, लेकिन सत्ता के उन्माद में, घमंड में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता बात को अनसुनी करते रहे, तवज्जो नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से उनकी कुंभकर्णी नींद इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदार है। आज मैंने जनता के हितों की रक्षा के लिए बहुत सोच समझ करके अपना राजनीतिक फैसला किया है और ये राजनीतिक फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत का अंतिम कील होगा। राजनीतिक फैसला क्या है? कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत है। उसका मतलब क्या है कि आपने उनका स्वागत स्वीकार किया या फिर नहीं किया? क्या करें? मेरे इस्तीफे का स्वागत कोई करेगा, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। हमारे इस्तीफे का कोई भी स्वागत करेगा, हम उससे धन्यवाद देंगे। हजारों कार्यकर्ता रहे, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे अभी?
14 जनवरी को वो भी तय हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, 2 दिन क्या करेंगे आज कल? 2 दिन हम अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से, जो हजारों की तादाद में कल से लगातार आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनकी बात को सुन रहा हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, और जो नहीं आ पा रहे हैं मैं उनसे टेलीफोन पर संपर्क करके उनसे बात करके उनकी भावनाओं को जानकारी ले रहा हूँ। कल शाम तक मैं अंतिम निर्णय की स्थिति पहुंच जाऊंगा और 14 जनवरी को उस फैसला को सुना दूंगा। सर, संघमित्रा जी आपकी बेटी भी है, बदायूं से सांसद भी है, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मंत्री पद छोड़ा भी, बीजेपी नहीं छोड़ा है, वो भी आपके साथ आएंगी? देखिए, वो बदायूं की सांसद है, उसका अपना फैसला है। मैं किसी से राय मशविरा करके, किसी से पूछ करके और किसी को आमंत्रित करके अपना फैसला नहीं लेता हूं। ये फैसला सरकार में मंत्री मैं हूं और मंत्रिमंडल से इस्तीफा मैंने दिया है। कौन देता है कौन नहीं देता है ये वक्त बताएगा। आज तो सिर्फ मैंने इस्तीफा दिया है। सर, केशव मौर्य जी को जिम्मेदारी दी गई है आपको मनाने के लिए, ट्वीट भी किया कि बैठ करके बात कीजिए। केशव मौर्य जी ने आपको फोन किया, बीजेपी के नेता आपको फोन कर, उनके फोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? देखिए, केशव मौर्य जी भले डिप्टी सीएम है लेकिन हमारे छोटे भाई हैं। वो स्वयं बेचारे की हालत में 5 साल बिताए हैं, इसलिए मुझे उन पर तरस आती है। हमें उन पर कुछ नहीं कहना है। अब वो बेचारे की हालत में रह सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो सम्मान स्वाभिमान के साथ हमेशा राजनीति किया है, वो बेचारा की हालत में कभी नहीं रह सकता। बीजेपी नहीं जाएंगे आप वापस? वो बेचारा की हालत में नहीं रह सकता है। मतलब बीजेपी जाएंगे कि नहीं वापस जाएंगे? जिस चीज को एक बार किक किया स्वाभाविक रूप से वहां आने जाने कोई प्रश्न नहीं उठता। आखिरी सवाल आपसे, 14 तारीख को आप बताएंगे, अब लोग ये कह रहे हैं, कल से जब से आपने इस्तीफा दिया तमाम सोशल मीडिया पे राजनीतिक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लोगों का टिकट कट रहा था, तो अब जो है अंत समय पर उन्होंने 4 साल तो सत्ता का सुख भोगा और आखिरी में जब चुनाव की बारी आई तो छोड़ के चले गए। वो शख्सियत है जिसको चाहते हैं टिकट दिलाते हैं, जिसको चाहते हैं टिकट नहीं चाहते, जिसको नहीं चाहते नहीं मिलता, जिसको चाहते हैं मिलता है। और कहीं भी रहे उनकी हैसियत कोई नजरअंदाज नहीं करता। टिकट बातें नहीं होती है, बात टिकट की महत्व नहीं है। अच्छा, 5 साल तक फिर यही जनविरोधी नीति का हम साथ दें, जिसका हम अभी तक विरोध करते रहे, उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार अपनी बात करते रहे, और बात अनसुनी करने के बाद टिकट के लालच में, मंत्री पद के लालच में फिर से हम इनका पाप ढोएं। ठीक है सर, ये एक धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, कई मंत्रियों के आने की बात हो रही थी, तो 14 तारीख को ही बताएंगे या फिर? जो भी आएगा 14 तारीख को उसका फैसला आपके सामने रहेगा। আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ, ইজনৰ পিছত সিজনকৈ মন্ত্ৰীয়ে, 2জনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে। যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰৰ পদত্যাগত জোৱাৰ উঠিছে আৰু ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে।